गुड मॉर्निंग, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर से एक बार हम विक्ट्री फैमिली सेंटर ऑनलाइन चर्च में आज के दिन जोड़े हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह सुंदर नाम से हम स्वागत करते हैं। हम बहुत खुश हैं कि आप हमारा साथ आज जोड़ा हुआ है और हम आशा करते हैं कि परमेश्वर आप सबको बहुत टाइट से आशीष देगा और परमेश्वर का वचन के द्वारा आपको बात करेगा। और हम ये भी आशा करता है कि परमेश्वर आपका जीवन में आज महान कार्य करेगा। आए कलीसिया, हम आज का दिन हम यहोवा ने जैसे बनाया है, हम आनंदित के साथ आत्मा से सच्चाई से हम मिलकर जहाँ में भी हो हम प्रभु यीशु मसीह को आराधना करेंगे। उससे पहले कि हम आराधना में जाएं, हम एक बाइबल वर्स पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना करके हम लोग आराधना में जाएंगे। भजन संगीता Psalms 47 verse 6, 7 and 8 says, Sing praises to God, sing praises to our King, sing praises, for God is the King of all the earth. Sing to him a psalm of praise. God reigns over the nations, God seated on his holy throne. परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ, परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। आइए चर्च, हम आराधना बजाने से पहले अपने आप को तैयार करते हुए छोटा से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम अपना हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे और अपना आप को तैयार करेंगे। Lord, we want to thank you. We want to honor you, God, for this day. We want to welcome you in our midst, oh God. Let your holy presence, let your Holy Spirit, Lord, visit us, oh God. Take complete control, oh God. Lord, help us to worship you in spirit and in truth, oh God. प्रभु, हम इस समय में प्रभु आपको उपस्थिति को मांगते हैं। तेरे पवित्र आत्मा हमारा बीच में उतर जाए प्रभु, हमें सहायता करे, हमें तैयार करे, ताकि तेरे आराधना हम प्रभु आनंदित से, सच्चाई से, आत्मा से तेरे आराधना करने पाए। आए हुए सभी लोग को प्रभु आपका नियंत्रण में लाते हैं। प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा पूरा कब्जा करे, हमें वो आराधना सच्चाई के द्वारा करने के लिए सिखाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सारे आदर महिमा हम तुझको देते हैं यीशु के नाम से, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। आए हम आराधना में जाएंगे। Like the psalmist says, the Lord reigns over all the earth, over all nations. So this morning let us sing it together as a proclamation and as a prayer that the Lord will reign over our life once again, over our thoughts, over our dreams, and even in our joyous time and in our darkest time, let the Lord reign over again. जैसे भजन संगीता में हमने पढ़ा है, परमेश्वर हमारा ऊपर राज होने दे। परमेश्वर सारे पृथ्वी, सारे जाति के ऊपर राज करते हैं। आज सुबह इस गीत को गाते हुए हम अपना प्रार्थना के रूप में परमेश्वर को कहेंगे और घोषणा करेंगे कि हमारे परिस्थिति में, हमारा जीवन के ऊपर फिर से परमेश्वर राज होने पाए। हालेलुया। आया हम इस गीत को गा के हम उसको आराधना, स्तुति, महिमा देंगे। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Over all the earth, you reign on high. Every mountain stream, every sunset sky. Not my one request, Lord, my only aim is that you reign in me again. Lord, reign in me, reign in your power over all my dreams. In my darkest hour, you are the Lord of all I am. So won't you reign in me again?
life reflect the beauty of the Lord. Let's sing it together. Over every thought, over every word, may my life reflect the beauty of my Lord. You mean more to me than any other thing. So won't you reign in me again, Lord, reign in me, reign in your power over all my dreams. In my darkest hour, you are the Lord of all I am. So won't you reign in me again, Lord, reign in me, reign in your power over all my dreams. In my darkest hour, you are the Lord of all I am. So won't you reign in me again? So won't you reign in me again? So won't you reign in me again? Oh, Lord, you reign in me again. Over all my life, over all my dreams, in my darkest hour, you reign in me again. Lord, reign in me, reign in your power over all my dreams. In my darkest hour, you are the Lord of all I am. So won't you reign in me again? So won't you reign in me again? So won't you reign in me again? Hallelujah. धन्यवाद यीशु. हालेलुया हालेलुया. लॉर्ड यू रेन इन मी जीसस. प्रभु तू हमारे जीवन में, हमारे परिस्थिति में फिर से राज होने पाए. धन्यवाद. तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु, तेरे नाम को हम महिमा करते हैं प्रभु. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हमेशा के लिए हम तेरी आराधना करेंगे. थैंक यू लॉर्ड. सारा जहां गाए प्रभु की महिमा. सुंदरता सुंदरता मैं कौन है प्रभु के समान. हमेशा हमेशा के लिए तू है राजा. मिलकर गाएंगे तेरी आराधना. आए कली से हम मिलकर इस गीत को गाएंगे. अपना हाथों को उठा उसको धन्यवाद करते हुए उसको आराधना करते हैं. जहां में हम हैं परमेश्वर हमारा साथ उसका उपस्थिति है. हम उसको आराधना करेंगे. हमारा साथ उसकी उपस्थिति है. मैं जाहिर करूं जीवित यीशु की महिमा. जो कुर्बान हुआ मेरे पापों के लिए.
हमेशा के लिए तू है राजा। हम मिलकर गाएंगे तेरी आराधना। Forever, forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship Him alone. Forever, forever He will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship Him alone. मिलकर हमेशा के लिए तू है राजा। हम मिलकर गाएंगे तेरी आराधना। तेरी आराधना। तेरी आराधना। हमेशा के लिए तेरी आराधना हो यीशु। Forever you will be worshipped यीशु। Forever and ever you will be worshipped. You are the Lamb of God who was slain. You are my Savior. I worship you, Lord. I honor you, Lord. We give you glory. We give you honor. Oh, Remande Shalavariande. Oh, Shalavariande. We worship your holy name. Thank you, Jesus. कलीसिया हम आपको ये उत्साहित करना चाहता है, आप जहाँ में भी हो अपना हाथों को उठाकर उसको धन्यवाद करें, उसको आराधना करें। हम यहाँ उसको आराधना करने के लिए आए हैं। हमारे बीच में परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हो भजन संहिता 27 और उसका 4 वचन में वहाँ लिखा है, दाऊद कहते हैं, राजा दाऊद का एक तलाश है और उसने वो एक मांग परमेश्वर के ऊपर रखा और वो है उसके जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाओ। और वहाँ क्या करने के लिए? वहाँ उसकी परमेश्वर की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहने पाए। आए हम आज सुबह वो प्यासा हमारा मन में, हमारे हृदय में होने पाए। हम जो आराधना कर रहा है केवल गीत ना हो, लेकिन हम जो गा रहा है अपना दिल से, सच्चाई से, आत्मा से होने पाए। उसके लिए हम प्यासा उस भूख के साथ आकर हम उसको धन्यवाद करें। हालेलुया।
बुलाता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, तेरे तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू। तू ही मेरी प्यार, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तलाश। जैसे हिरनी जल के लिए, वैसे मेरा दिल तेरे लिए तरसे। तू ही मेरी प्यार, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तलाश। जैसे हिरनी जल के लिए, वैसा मेरा दिल तेरे लिए तरसे। तेरे तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। हालेलुया। यीशु तेरे तलाश है, तुझ में रहूं, तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे। यही मेरे दिल की है दुआ, रात और दिन तुझे महिमा दूं। तेरे मंदिर में मैं रहूं, तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे। यही मेरे दिल की है दुआ, रात और दिन तुझे महिमा दूं। तेरे मंदिर में मैं रहूं, तेरे तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। यीशु मेरी आवाज़ तू सुन ले। जैसे हिरनी जल के लिए तरसता है, मेरे प्राण तेरे लिए तरसता है। यीशु प्यासा है तेरे लिए, प्यासा है यीशु। आए कलीसिया एक और बार गाएंगे। जैसे हिरनी जल के लिए जो प्यासा है, वैसे मेरे दिल भी तेरे लिए तरसा है। इस
इसको फिर से एक साथ गाएंगे, दिल से, आत्मा से, सच्चाई से गाएंगे। जैसे हिरनी जल के लिए, वैसे मेरा दिल तेरे लिए तरसे। रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं। तेरे तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना हम करते हैं सच्चाई से, आत्मा से। ओ तेरे लिए प्यासा हूँ यीशु। हालेलुया, हालेलुया यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। कलीसिया धन्यवाद करें, यीशु को देखिए, उसको धन्यवाद करिए। हालेलुया। आपका अंदर में जो बात है वो निकालिए, बोले उसको, धन्यवाद करिए। ओ धन्यवाद, ओ लंबा शानदार है, ओ यीशु ने। धन्यवाद यीशु। जय मसीह की कलीसिया, एक बार फिर हमें YouTube के माध्यम से इस तरह से ऑनलाइन एक दूसरे के साथ संगति करने का मौका मिल रहा है और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु, अपने आप को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में आप बढ़ते चले जाए और हम घटते चले जाए। हमारा जीवन प्रभु आपके बारे में हो परमेश्वर पिता। प्रभु, आपके वचन के अनुसार हम जीवन जीने वाले लोग बने प्रभु, आपको ग्रहणीय योग्य हो ऐसे लोग हम बने प्रभु। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे अंदर कार्य करते हैं और प्रभु आपका कार्य अभी तक जारी है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु, हमारे आँखों को खोल दीजिए, हमारे कानों को खोल दीजिए प्रभु, कि जब हम आपके कार्य को होता हुआ देख सके, आपके आवाज़ को सुन सके और हमारे हृदय को भी प्रभु आप तैयार करें, बदल दीजिए प्रभु, कि हम जब आपके कार्य को होता हुआ देखते हैं, आपकी आवाज़ को सुनते हैं, आपकी बातों को समझ
समझ सके और उसके अनुसार हम अपने जीवन को जी सके। ये समय आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हर एक वचन आपके द्वारा अभिषेक किया गया हो प्रभु। आप हमसे बातें करें, हमारी ज़रूरत के जगह में आकर हमसे मिले प्रभु। हमारे जीवनों को प्रभु आप देख ले परमेश्वर पिता, और जो जो बातें हमारे जीवन में आपको ग्रहण योग्य नहीं है परमेश्वर, जो जो बातें हमारे जीवन में है जो आपको अप्रसन्न करता है, आपको अस्वीकार करते हैं प्रभु, आप जिन बातों को, उसको हमारे जीवन से आप दूर करें प्रभु। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी हमारे जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरी हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो कलीसिया, हम लोग कुछ दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरे को उत्साहित कर रहे हैं ये कहते हुए कि द टाइम इज नाउ, समय अभी है। और हम बार बार कलीसिया में इस बात को आपके सामने रख रहे हैं कि समय बहुत कम है और हमें जो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर को जो बातें खुश करती हैं, हमें वो कार्य करना चाहिए। अपने इस समय में हमारा जो प्राथमिकता होना चाहिए, हमारा जो प्रायोरिटी होना चाहिए, वो है परमेश्वर को प्रसन्न करना। और जैसे आप और हम इस बात से हमेशा सहमत होंगे कि आप और हम परमेश्वर के संतान हैं। पिछले दिनों जब मैं डिसाइपलिंग कर रही थी एक बहन का, और हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम लोग अध्ययन कर रहे थे, हमारा जो लेसन था, जो पाठ था, वो था द सेवियर के बारे में, उद्धारकर्ता के बारे में। और जब हम लोग वहाँ पे अध्ययन कर रहे थे, हम लोग इस बात को चर्चा कर रहे थे कि हम परमेश्वर के संतान हैं। और आप मेरे साथ सहमत होंगे कि हम परमेश्वर के संतान हैं। और जब हम चर्चा कर रहे थे इस बात का, हम बात कर रहे थे कि हम परमेश्वर के संतान हैं दो कारणों से। पहला कारण जो मलाकी उसका 2 अध्याय का 10 वचन में लिखा हुआ है, डू वी नॉट ऑल हैव वन फादर, डिड नॉट वन गॉड क्रिएट अस, व्हाई डू वी प्रोफेन द कवेनेंट ऑफ आवर एंसेस्टर्स बाय बीइंग अनफेथफुल टू वन अनदर। सो यहाँ पर देख रहे हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या हम सबों का एक ही स्वर्ग पिता नहीं है? वो हमारा पिता है क्योंकि उसने हमें सृजा है। Did not one God create us? क्या एक ही परमेश्वर ने आपको और हमें नहीं सृजा है? परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसके संतान हैं क्योंकि उसने हमें सृजा है। और दूसरा कारण हम देखते हैं यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 12 वचन में, Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो दूसरा कारण है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, वो ये है कि हमने नई रीति से जन्म लिया है। We are born again. We are born again Christians, and so we have got the right to be called the children of God. क्योंकि हमने नए सिरे से जन्म लिया है, क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है, हम परमेश्वर के संतान बन गए हैं, हम उसके परिवार में हम शामिल हो गए हैं। हम परमेश्वर के संतान हैं। और ये बहुत ही खुशी का बात है कि हम अपने परमेश्वर को हम पिता कहकर पुकार सकते हैं। और हम देखते हैं कि हम आज बात कर रहे हैं जब परमेश्वर के संतान का, एक बच्चा जो होता है, एक संतान के बारे में बाइबल बहुत सी बातें बताती है। यीशु मसीह ने मत्ती उसका 18 वचन के 2 और 3 वचन में इस तरह कहता है, He called a little child to him and placed the child among them, and he said, Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. यहाँ पर हम देख रहे हैं यीशु मसीह कहता है कि वो एक बच्चे को लेकर आता है और बोलता है कि जब तक तुम इस बच्चे के जैसे नहीं बनोगे, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और बाद में हम देखते हैं मत्ती उसका 19 अध्याय में एक बार फिर यीशु मसीह इस बच्चे को लेकर के एक बात कहता है। आइए हम देखते हैं मत्ती उसका 19 अध्याय का 14 वचन। Jesus said, Let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these. यहाँ पर भी कहता है वो कि छोटे बच्चों को, छोटे बालकों को मेरे पास आने दो, बालक हो बालिका हो, सब बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है।
सो हम देखते हैं यीशु मसीह हमसे बार बार कहते हैं कि छोटे बच्चे के समान बनने के लिए, छोटे के बच्चे के जैसे बनने के लिए, अगर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, अगर हमें परमेश्वर का राज्य पाना है, सो ज़रूरी है कि हम छोटे बच्चे के समान बने। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं पौलुस हमें कुछ कह रहा है। आइए हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय का 11 वचन। When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. So हम देखते हैं पौलुस यहाँ कह रहा है कि एक समय था जब वह एक बच्चा था और वह एक बच्चे के जैसे सोचता था, एक बच्चे की समझ वो रखता था, उसका व्यवहार एक बच्चे के जैसे था, उसका कार्य एक बच्चे के जैसा था। लेकिन वो कहता है कि अब जब वो एक यंग मैन, एक पुरुष, एक जवान व्यक्ति, एक जवान लड़का बन गया है, एक जवान व्यक्ति बन गया है, सो उसने अपने बचकानी आदतों को, अपना बचपना को उसने दूर कर दिया है। और अगर हम सोचे तो हमें लगेगा अरे ये दोनों बात तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ यीशु मसीह कह रहा है कि छोटे बच्चे के समान बनो तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारा होगा, और यहाँ पौलुस कहता है कि जब मैं बड़ा हो गया तो मैंने अपने बचपन की बातों को, बचपना को मैंने अपना अलग कर दिया। यहाँ पे क्या हमसे कहा जा रहा है? पौलुस यहाँ कह रहा है कि वो अपने उम्र के साथ वो परिपक्व होता चला गया, वो अपने उम्र के साथ, अपने उम्र की बातों के अनुसार वो आगे बढ़ता चला गया। जो बचपन की बातें थी वो उसके जीवन से बीतती गई और वो जैसे जैसे बड़ा होता गया वो परिपक्व या मैच्योरिटी में आता गया। He started maturing with his age. बहुत ही अजीब होगा अगर हम जैसे हम बचपन में थे, अगर अभी भी हमारी वो ही लालसाएं हैं, अगर अभी भी हम वैसा ही सोच रखते हैं, अगर अभी भी हमें वो ही सब बातें पसंद है जो हमें बचपन में पसंद थे, अगर अभी भी हम वैसे ही बातें करते हैं, वैसे ही सोच रखते हैं, वैसे ही व्यवहार करते हैं, तो ये बहुत अटपटा होगा। लोगों को कुछ अजीब लगेगा हमारे बारे में, उनको लगेगा कि अरे ये तो नॉर्मल नहीं है। सो यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि हमें जरूरत है कि हम अपने एज के साथ मैच्योर करें। आप अपने आत्मिक जीवन को देखिए, जब आपने प्रभु को ग्रहण किया था तब और अब क्या आप वैसे ही हैं? जब आपने प्रभु को ग्रहण किया था उस समय आपका व्यवहार, आपका सोच, जो बातें आपको परेशान करती थी, क्या आज भी वही बातें आपको परेशान करती है? जो बातों से आपको बुरा लगता था, क्या आज भी आपको वही बातों से बुरा लगता है? आपने उस समय परमेश्वर को जो जैसा जाना था, क्या आज भी आप परमेश्वर को सिर्फ उतना ही जानते हैं? क्या उस समय आपका जो परमेश्वर के साथ अनुभव था, क्या आज भी आपके जीवन में सिर्फ वैसे ही अनुभव हैं कि आप अपने अनुभव में और ज्यादा आगे बढ़े हैं? आपने परमेश्वर को और गहराई से जाना है? और अगर ऐसा नहीं है, आपका यात्रा जो आपका आत्मिक जीवन का है, इसका आरंभ में आप जैसे थे, अगर आज भी आप वैसे ही है, तो ये समय है कि हम अपने जीवन को परखें, क्योंकि इसका मतलब है that there's something strange, कुछ अजीब है, तब कुछ जो सही नहीं है हमारे जीवन में। सो यहाँ पे पौलुस यही कह रहा है कि वो समय के साथ जब वो बड़ा होता गया, उसने अपने बचपना, अपने बचकानी आदतों को अपने से दूर कर दिया। हम बहुत बार सुनते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो ईश्वर का रूप है। बहुत बार लोग बोलते हैं, अगर आपने सुना है कि नहीं मुझे नहीं पता। एक बार किसी के लिए हम जब जम्मू में थे, प्रार्थना का निवेदन आया था और हम लोग गए थे और परमेश्वर ने एक वचन दिया था और हमने प्रोफेसाई किया, और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करते रहे। लेकिन वो जब प्रोफेसी खत्म होते होते जब 1 साल हम वापस गए और परमेश्वर ने वो कार्य को, जो परमेश्वर ने वचन दिया, उसको फुलफिल किया, उसको पूरा किया था उस व्यक्ति के जीवन में। पर उस व्यक्ति की माँ आकर हमें कहती है, बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने प्रार्थना किया, मेरे घर के जो छोटा बच्चा है वो भी बहुत प्रार्थना करता था, और वो पर भगवान तो उसका डायरेक्टली सुनता है, क्योंकि बच्चों का तो सीधा जाता है। हम बहुत बार ऐसा बोलते हैं। हम बहुत बार बोलते हैं कि जब छोटा बच्चा सो रहा होता है एक्चुअली और वो स्माइल करता है, तो लोग बोलते हैं अरे वो लोग एंजल्स को देखते हैं, क्योंकि इसलिए वो लोग मुस्कुरा रहे होते हैं।
और लोग कहते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही मासूम होते हैं, बहुत ही मासूम होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं। लेकिन आज मैं आपको कहना चाह रही हूं कि बच्चे छोटे जो होते हैं वो भी पापी होते हैं, क्योंकि उनका जन्म पाप में हुआ है। उनकी जो बचपन की जो हरकतें हैं वो उसमें साफ वो पापी स्वभाव दिखाई देता है, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ है वो जन्म से ही उसने आदम का वो जो स्वभाव है वो पा लिया है। आरंभ से ही उन्होंने आदम का वो स्वभाव को अपना लिया है, उनके अंदर है वो। उनका जन्म ही वो आदम के वो स्वभाव के साथ हुआ है, उनका जन्म से। जब एक बच्चा का जन्म होता है और वो जब बढ़ता है और कुछ कुछ हरकतें जब वो करने लगता है और जब हम लोग देखते हैं तो हमें लगता है अरे हमने तो उसको नहीं सिखाया। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को गलत आदतें नहीं सिखाते। किसी ने भी अपने बच्चे को झूठ बोलना नहीं सिखाया, किसी ने भी अपने बच्चे को किसी को मारना या किसी से सामान छीनना या स्वार्थी बनना नहीं सिखाया। लेकिन एक बच्चा बचपन से ही ये सब हरकतें करने लग जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि बच्चा बुरा होता है, नहीं, बच्चे के अंदर वो धोखा देना, जैसे कि बड़े लोग एक दूसरे को धोखा देते, ये सब स्वभाव नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी पाप पाया जाता है, क्योंकि जन्म से ही उसके अंदर वो स्वभाव पाया जाता है। आदम का जो स्वभाव है उस बच्चे के अंदर है। हम जब जन्म लेते हैं हम उस एडमिक नेचर में जन्म लेते हैं। हम इसलिए पापी नहीं हैं क्योंकि हम गलत काम करते हैं, लेकिन हम इसलिए पापी है क्योंकि हम जन्म पाप में हुआ है, और क्योंकि हम पापी है इसलिए हम गलत काम करते हैं। वो पापी स्वभाव जिसके साथ हमने जन्म लिया, जैसा कि दाऊद कहता है भजन संहिता में, उसके कारण हम पाप करते हैं। सो यहाँ पर जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूं, जहां पे जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूं वो ये है कि एक अगर हम बच्चे को देखें, ठीक है, वो बच्चा को आत्मिक लड़ाई पसंद नहीं है, वो बच्चा को बुरा लग जाता है, वो परेशान हो जाता है अगर उसकी इच्छा को हम पूरा नहीं करते। अगर हम बच्चे को बोलते नहीं ऐसा मत करो, वो बच्चा वो जरूर करके देखना चाहेगा, क्योंकि उसके अंदर वो देखने की इच्छा होती है, वो करने की। आप जो भी चीज के लिए एक छोटे बच्चे को बोलो नो, वो जाके करना चाहता है उसको। सो एक बच्चे के अंदर में वो स्वभाव है कि जब तक उसकी मन की इच्छा पूरी ना हो जाए वो जिद करता है, वो उसको करने की इच्छा रखता है। उसे आप अगर सही चीज सिखाएंगे उसको नहीं चाहिए, उसको वो लड़ाई, वो जो आत्मिक लड़ाई है उसको वो नहीं चाहिए, उसको अपने मन की इच्छा पूरी करनी है। और जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसको बुरा लगता है और वो रोता है और कभी कभी वो तमाशा करता है। एक छोटा बच्चे के बारे में मैं जब आपसे कह रही हूं, और एक छोटा बच्चा को बहुत आसान है उसके लिए दुनिया को अपना लेना, दुनिया के अनुकूल हो जाना, उसको नई नई बातें करना अच्छा लगता है। एक बच्चा बहुत ही आसानी से रुचि किसी कार्य में, कोई चीज में खो देता है। द स्पिरिट ऑफ एपथी कम्स इन, एक उदासीनता की आत्मा उसके अंदर आ जाती है। वो बहुत बहुत जल्दी वो रेस्टलेस हो जाता है, ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाता। और जब मैं बात कर रही हूं, मैं एक छोटे बच्चे की बात कर रही हूं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि एक छोटा बच्चा बुरा है, क्योंकि मैंने जितने भी आपको बातें बता दी, नहीं, वो छोटा बच्चा है और उसके अंदर अभी परिपक्वता नहीं आई है। मैं एक ऐसे बच्चे की बात कर रही हूं जो छोटा है, जो अपने चाइल्डहुड में है, बचपन में है। लेकिन हम परमेश्वर के संतान अगर बचपन में, जब हमारा यीशु मसीह के परिवार में जन्म हुआ, हम बचपन के जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तब अगर हम ऐसा हो तो वो समझ में आता है। लेकिन परमेश्वर के साथ उसके उस परिवार में अगर हमारा समय बीत गया है, हमारा 2-3 साल हो गया है और तभी भी हमारे अंदर ऐसी ही बातें पाई जाती हैं, तो कुछ गड़बड़ है, तो कुछ गड़बड़ है। तब हम जो संतान है परमेश्वर के, वी हैव बिकम अडल्ट चिल्ड्रन नाउ। और हमारे अंदर हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमें परिपक्व होते जाना है। वो बचपना हम आगे लेकर नहीं चल सकते। यहाँ यीशु मसीह जब कह रहे हैं टू बी लाइक चिल्ड्रन, बच्चे के जैसे बनो ताकि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो, बच्चे के जैसे बनो ताकि स्वर्ग का राज्य आपका है, वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बच्चे के जैसे निर्भर करना सीखो।
परमेश्वर पर, उस पे विश्वास करना सीखो। पूरे तरीके से अपने सारे जरूरतों के लिए निर्भर करो। सो टू बी लाइक अ चाइल्ड इज एक्सेप्टेबल। एक बच्चे के जैसे हम बने ये ग्रहण योग्य है, लेकिन अगर एक बच्चे के जैसे समझ रखे, एक बच्चे के जैसे हरकतें रखे, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो हमें अपने आप को देखना है, हमें अपने आप को परखना है कि हम कैसे हैं। हमारा आत्मिक चाल चलन में, हमारा आत्मिक जीवन में क्या अभी भी हम बच्चे के समान हैं? हमने जब यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया था, उस समय और अभी का समय में कुछ चेंजेस है कि नहीं हमारे जीवन में? हम आगे बढ़े हैं कि नहीं? हम आगे अपने आत्मिक जीवन में और गहराई में गए हैं कि नहीं? मैं नहीं कह रही हूं कि बच्चे बुरे होते हैं। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मेरा एक नेफ्यू है अभी हमारे साथ, 3 बच्चे हैं घर में, और उनके हरकतों को हम लोग देखते हैं। अभी उनके अंदर वो परिपक्वता नहीं है, लेकिन कुछ साल के बाद अगर ये बच्चे बड़े होकर भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे, बचपना उनके अंदर आएगा, तो वो बहुत बुरा होगा। तब हमें लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। शायद हम लोग उनको कोई साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएंगे, कोई साइकियाट्रिस्ट को दिखाएंगे कि हमारा बच्चा का मानसिक विकास हो रहा है कि नहीं, हमारा बच्चा क्यों मैच्योर्ड नहीं हो पा रहा है। ठीक वैसे ही हमारा मसीही जीवन में हमारा आरंभ तो बच्चे के जैसे होता है जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, लेकिन क्या हम परिपक्वता में अपने जीवन में बढ़ रहे हैं कि नहीं, या हम जहां थे हम वहीं हैं। हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय का 20 वचन में, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स स्टॉप थिंकिंग लाइक चिल्ड्रन, इन रिगार्ड टू इविल बी इन्फेंट्स, बट इन योर थिंकिंग बी अडल्ट्स। बहुत साफ साफ यहाँ पौलुस कह रहा है कि बच्चे के जैसे सोचना बंद करे। हाँ, जहां बुराई है वहां बच्चे के जैसे बने, लेकिन अपने सोच में, अपने समझ में एक समझदार व्यक्ति, एक अडल्ट के जैसे, एक मैच्योर्ड व्यक्ति के जैसे बने। हम और एक वचन देखेंगे, इफिसियों 4 अध्याय का 14 वचन, Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. So यहाँ पौलुस फिर एक बार कह रहा है कि जो बच्चा है वो बहुत आसानी से दुनिया की बातों को अपना लेता है। कुछ भी नया चीज आएगा, कुछ भी आकर्षक चीज आएगा, बहुत आसानी से वो बहल जाता है। और यहाँ पौलुस कह रहा है कि अब हम वैसे नहीं हैं, हम उस बच्चे के समान नहीं है, लेकिन अब हम परिपक्व हो गए हैं। हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस एक बार यहाँ कुरिन्थियों से जब बात कर रहा है, कुरिन्थियों की कलीसिया से, 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय का 1 से 3 वचन को हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई कुड नॉट एड्रेस यू एज पीपल हु लिव बाय द स्पिरिट, but as people who are still worldly, mere infants in Christ. I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. You are still worldly. For since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere humans? So वो यहाँ पे कह रहा है कि क्या अभी तक मुझे कुरिन्थियों को कह रहा है वहां की कलीसिया, क्योंकि अभी तक मुझे आपको दूध ही खिलाना पड़ रहा है, मैं कब तक आपको दूध खिलाऊंगा? आपके अंदर अभी भी दुनिया की बातें हैं, अभी भी आप आत्मा के नहीं चल रहे हैं, अभी भी आप यीशु मसीह में बच्चे ही बन करके है। वो यहाँ पर ये बातों को कह रहा है। हमें भी अपने जीवन को परखने की जरूरत है। क्या अभी तक हम भी टॉफी और चॉकलेट ही खा रहे हैं? हमारा भूख सिर्फ टॉफी और चॉकलेट के लिए ही है कि हमारा एपेटाइट जो है, हमारा भूख जो है वो बढ़ गया है और अब हमें मांस, मछली और पुष्ट आहार की जरूरत है? हमारा भूख क्या है? मुझे बहुत दुख होता है, मैं कलीसियाओं में देखती हूँ और मैं मसीही भाई बहनों को देखती हूँ, और जब वो लोग को सिर्फ ऐसे वचन ही सुनना पसंद है जिसमें कहता है परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको शांति देता है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। हाँ, ये सब सच्चाई है, ये सब सच है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और बहुतायत से प्रेम करता है। लेकिन परमेश्वर सिर्फ अनुग्रहकारी नहीं है, परमेश्वर धार्मिक परमेश्वर है।
वो धार्मिकता का परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है। और वो सिर्फ अनुग्रहकारी नहीं है, लेकिन उसका जो स्वभाव है, उसके जो गुणों में एक और एक गुण है, वो है धार्मिकता। अगर परमेश्वर हमें सिर्फ चाहता कि हम उसको एक प्रेम करने वाला परमेश्वर या परमेश्वर प्रेम है, बस इतना ही अगर हम जानकर रह लेते, तो हमारा बाइबल में सिर्फ 4 गॉस्पल सुसमाचार ही होता, जहां पे हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखते हैं और सिर्फ जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, वो हमारी सुधि लेता है, वो हमारी चिंता करता है और वो चाहता है कि हम उसके प्रेम में बस जीवन जीते रहे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जैसे धार्मिक भी हो, क्योंकि हम उसके बुलाए हुए लोग हैं और उसने हमें अलग किया है धार्मिकता के लिए। हमें जरूरी है कि हम अपने आप का जो हमारा जो जीवन है, हम अपने आप को समर्पित करें, ताकि वो हमें उसके धार्मिकता के अनुसार बनाए। परमेश्वर चाहता है कि हम धर्मी लोग बने। इसलिए बाइबल में हम देखते हैं कि सिर्फ नए नियम में वो 4 सुसमाचार नहीं है, लेकिन उसके बाद पत्रियां हैं, पौलुस की पत्रियां हैं, जहां पे पौलुस बार बार कलीसियाओं को लिखता है और कहता है कि परमेश्वर कैसा जीवन चाहता है कि वो जिए। परमेश्वर चाहता है कि वो मसीह के स्वरूपता में बनते चले जाए। परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करना चाहता है। वो जो बातें जो उसको ग्रहण योग्य नहीं है, जो बातें जो उसको अप्रसन्न करती है, परमेश्वर चाहता है कि उनके जीवन से निकलती चली जाए। और वो चाहता है, वो करता है वो कार्य को। और इसीलिए परमेश्वर ने पौलुस के उस पत्री को उस बाइबल में रखा है, ताकि आप और हम पढ़े और अपने जीवन को उसके अनुसार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, वो पुनरुत्थान के सामर्थ्य से अपने आप को बदल सके। कलीसिया, हम सिर्फ परमेश्वर प्रेम है बोल करके आनंद और मग्न में नहीं रह सकते, लेकिन हमें जरूरत है कि अपने जीवन को हम रोज बरोज परखते जाए और परमेश्वर को ग्रहण योग्य बनाते जाए। God is not finished with us. He is still working in us. क्योंकि वो चाहता है कि हम यीशु मसीह के स्वरूपता में ढलते चले जाए। He wants to make us more like Jesus. और वो हमारे अंदर कार्य कर रहा है। वो चाहता है कि हम उस परिपक्वता में आ जाए। वो चाहता है कि हम उसके साथ वो करीबी रिश्ता में, घनिष्ठता का रिश्ता में और गहरे रिश्ता में हम चले जाए और हमारा मसीही जीवन में हम ग्रो करें। परमेश्वर की ये इच्छा है हमारे लिए। हमारा जो शत्रु है वो नहीं चाहता कि हम अपने मसीही जीवन में जिए। वो नहीं चाहता हम अपने मसीही जीवन में आगे बढ़े और परिपक्व हो। इसीलिए वो नहीं चाहता कि हम वचन को पढ़े और हम सत्य को जाने। वो चाहता है कि हम एक हारा हुआ जीवन ही जीते रहे, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर हम वचन को पढ़ लेंगे, हम जान जाएंगे कि वी आर मोर देन कॉन्करर्स। हम जयवंत से भी बढ़कर है। हमारे जीवन की कोई परिस्थिति हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती। परमेश्वर हमारे लिए है, हमारे विरुद्ध नहीं है। हम जान जाएंगे ये सब बातों की गहराई को। हम जान जाएंगे कि परमेश्वर की सारी आशीषें जो है वो यीशु मसीह में हाँ और आमीन है। और वो शैतान जानता है, इसीलिए वो हम चाहता है कि हम जहां है वहीं रहे, हम संतुष्ट रहे, एक बच्चे बनकर संतुष्ट रहे। वो नहीं चाहता कि हम परिपक्वता में बढ़े, क्योंकि जब हम परिपक्वता में बढ़ेंगे हमारा विश्वास पहाड़ को हिला देने वाला विश्वास बन जाएगा। वो चाहता है कि हम एक बच्चे का ही विश्वास रखें। प्रभु मुझे आशीष दो, सिर्फ आशीष, सिर्फ आशीष। पर एक विजय जीवन, एक बच्चा विजय जीवन के बारे में कुछ नहीं जानता। वो बस जीवन के लिए निर्भर है अपने माता पिता पर। सब सामान माता पिता से मिलता रहता है। उसको नहीं पता कि कैसे विजय प्राप्त करना है, एक जैवन जीवन क्या है, उसको नहीं पता। और वो वहीं पे संतुष्ट है, वो वहीं संतुष्ट है। अरे हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, हम प्रार्थना कर रहे हैं, आशीष मिल रहा है। परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। हम मेरे परिवार को आशीषित कर रहा है, मुझे आशीषित कर रहा है, हमें आशीष मिल रहा है। और ज्यादा क्या चाहिए? और ज्यादा क्या चाहिए? कितने बार हम अपने जीवन में वो उत्तम को खो देते हैं और सेकंड बेस्ट के लिए हम सेटल कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए परमेश्वर ने क्या रख छोड़ा है।
We don't even know about it. That there is a best that is kept and we are settling for the second best. There are so many times that we settle in our life for much less than what God has in store for us. परमेश्वर जो हमारे लिए रखा है उससे हम बहुत ही कम के लिए हम संतुष्ट होकर खुश होकर रह जाते हैं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाह रही हूं कि एक छोटा बच्चा को परिपक्व होने के लिए, फॉर अ चाइल्ड टू बिकम अ यंग मैन, ही हैज टू फाइट द स्पिरिचुअल बैटल। उसको एक आत्मिक युद्ध लड़ने की जरूरत है अगेंस्ट ऑल दीज चाइल्डिश एक्शंस एंड बिहेवियर्स। ये सारी बातें जो उसको परिपक्वता में बढ़ने से, उसको मैच्योर बढ़ने से रोकती है, ये सारी बातों के विरोध उसको ये आत्मिक युद्ध लड़ने की जरूरत है। He needs to fight. He needs to fight to come to an understanding of a young man. We are in a constant battle. हम निरंतर युद्ध में हैं। हो सकता है आप बोले अरे मैं तो नहीं लड़ रहा। आप नहीं लड़ रहे, लेकिन आपका शत्रु आपके विरुद्ध निरंतर लड़ रहा है। और अगर आप तैयार नहीं हैं, अगर आप नहीं जानते कि आपको ये युद्ध कैसे लड़ना है, आपका जीवन में परमेश्वर क्या चाह रहा है, तो आप बार बार उसके आक्रमण, जो आपका शत्रु है उसके आक्रमण से हारते रहेंगे। वो बार बार आपके जीवन के ऊपर जय पाता रहेगा। सो जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। हम निरंतर आत्मिक युद्ध में हैं। हमारा जीवन के हर चुनाव में, हर निर्णय में हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। जब तक हम यीशु मसीह की स्वरूपता में न ढल जाए, तब तक हम एक आत्मिक युद्ध लड़ते जा रहे हैं। हम बार बार कलीसिया इस बात को कह रहे हैं कि हम आत्मिक युद्ध में हैं। वी आर इन अ बैटल एंड स्पेशली इन दिस एंड टाइम्स, ये अंत के दिनों में जब बुराई बढ़ जाएगा, लोग को भरमाया जाएगा, परमेश्वर का वचन का अकाल पड़ेगा, हमें इस बात को समझना है कि हम कॉन्स्टेंटली निरंतर एक आत्मिक युद्ध में हैं। लेकिन यहां पर इस बात को समझने के लिए कि हमें वो युद्ध को लड़ना है, बिफोर वी फाइट द बैटल वी हैव टू नो वन थिंग। हमें एक बात को पहले समझने का जरूरत है, तभी हम इस युद्ध को लड़ सकते हैं। और वो ये है कि क्या उद्देश्य है, हमारा क्या उद्देश्य है, व्हाट इज द पर्पस। वी हैव टू अंडरस्टैंड द पर्पस। वॉर के बारे में जब बात करते हैं, युद्ध के बारे में जब बात करते हैं, सो मेरे अगर मन में आता है, अभी जब कुछ समय पहले एक मूवी आया था बाहुबली, और वहां पे देखा कि कैसे वो लोग रणनीति बना रहे हैं युद्ध लड़ने का। कितना सिस्टमैटिक, कितना प्लान्ड, क्या रणनीति है, क्या स्ट्रैटेजी है, पूरा युद्ध कैसे लड़ता है, एक सेना कैसे लड़ती है। और अगर वहां पर कोई सैनिक है जिसको पता ही नहीं कि ये युद्ध क्यों लड़ा जा रहा है, उसको उसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई पर्पस ही नहीं है, वो पर्पसलेस, वो बिना कोई उद्देश्य का, बिना कोई दर्शन का वो बस चला जा रहा है, कहां जा रहा है उसको पता नहीं, वो उनके लिए एक हार का कारण बन सकता है। वो उस युद्ध को नहीं लड़ सकता। सो वी नीड टू नो, उस युद्ध को लड़ने से पहले जरूरी है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सके। क्या पर्पस है, व्हाट इज द पर्पस, What is God's purpose from your and my life? परमेश्वर का क्या उद्देश्य है आपके और मेरे जीवन से। और आइए आज हम कुछ वचन को देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का क्या उद्देश्य है। हमने पिछले बार एस्थर के पुस्तक से देखा था, और हमने देखा था कि उसको मॉर्देकाई ने कहा था, मॉर्देकाई ने उसको बोला था कि क्या पता कि तुम उस राज जो पद है, जो पोजीशन है, उस राजपद में क्या पता तुम इसी समय के लिए लाई गई हो। You never know you were brought to that position of queen for such a time as this. So हमें भी हमारे इस समय के लिए हमें समझना है कि परमेश्वर का क्या उद्देश्य है हमारे जीवन से। और उसके लिए आइए हम चलेंगे निर्गमन, द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन उसका 19 अध्याय का 5 और 6 वचन। Now if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession, although the whole earth is mine. You will be for me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites.
यहाँ पे परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है और वो यहाँ पे कह रहा है उसको, तुम मेरे लिए एक याजकों का राज्य हो, अ किंगडम ऑफ प्रीस्ट, और खास लोग, चुने हुए लोग हो। और हम देखते हैं यही बात बाइबल में हम जब देखते हैं और भी बार बार रिपीट हो रहा है। हम देखेंगे नए नियम में पहला पत्रस उसका 2 अध्याय का 9 वचन, हम इस वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं। आइए एक बार पढ़ेंगे हम इस वचन को। But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. हम देखते हैं यहाँ पर भी कह रहा है परमेश्वर की हम जो है बहुत खास लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम रॉयल प्रीस्टहुड है, हम याजक है, राजपद वाले। परमेश्वर यहाँ पे देख रहे हैं, हम देखते हैं ये नई वाचा है। और हमने अभी एक्सोडस जो पढ़ा, निर्गमन, वो पुरानी वाचा थी। पर हम देखते हैं चाहे पुरानी वाचा हो चाहे नई वाचा हो, परमेश्वर का जो उद्देश्य है अपने लोगों से, अपनी प्रजा से, वो नहीं बदला। पुरानी वाचा हो या नई वाचा हो, वो जो उद्देश्य है परमेश्वर का अपने चुने हुए लोगों से, अपनी प्रजा से, वो नहीं बदला। वो ही है कि हम परमेश्वर के जो प्रजा है, याजक की प्रजा है। वी आर द रॉयल प्रीस्टहुड, वी आर द किंगडम ऑफ प्रीस्ट। परमेश्वर आपको और मुझको, हमारे जीवन से परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम याजक हैं, अ होली नेशन, पवित्र लोग। परमेश्वर का यह उद्देश्य है आपके और मेरे जीवन से। लेकिन जब अगर हम इस उद्देश्य को नहीं समझ पाएंगे तो हम इस उद्देश्य को कैसे पूरा करेंगे? If we don't understand the purpose, then how are we going to fulfill the purpose? So we need to learn, we need to think, we need to see what God wants. और जब हम कह रहे हैं कि आप और हम याजक है, हो सकता है आप बोलेंगे अरे नहीं मेरा ये काम नहीं है, मेरा ये पेशा नहीं है, मैं याजक नहीं हूं। आपको कुछ गलतफहमी हुआ है। मैं तो बिजनेस करता हूं, या मैं तो स्कूल में पढ़ाती हूं, या मैं तो स्टूडेंट हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर आप परमेश्वर के चुने हुए हैं तो आप, then you are the royal priesthood, you are the kingdom of priests, you are the holy nation। अगर आप परमेश्वर के चुने हुए हैं तो आप है वो याजकों का प्रजा, आप है वो पवित्र लोग। और हमें समझने की जरूरत है हमारे इस उद्देश्य को जो परमेश्वर हमारे जीवन से रखता है, ताकि हम उसको पूरा कर सके। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जरूरी है कि हम इस उद्देश्य को समझ सके। और यहाँ पे जब परमेश्वर हमें कह रहा है कि हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम याजक है, हमें समझना है कि एक याजक का जो प्राथमिक कर्तव्य है, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ प्रीस्ट इज टू इंटरसीड, मध्यस्थता करना, to stand in the gap between the people and God, and to come to God on behalf of the people and to intercede। लोगों और परमेश्वर के बीच में उस अंतराल में खड़ा होना और परमेश्वर के पास लोगों की तरफ से उनका नेतृत्व करते हुए आना और लोगों की जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखना, ये कार्य है एक याजक का। और यहां पर परमेश्वर हर एक चुना हुआ जन को कह रहा है कि आपका ये कर्तव्य है, आपका ये प्राथमिक कर्तव्य है, क्योंकि आप चुने हुए हैं। और अगर आप चुने हुए हैं तो आप एक याजक है। ये सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं है, लेकिन ये हर एक चुना हुआ व्यक्ति के लिए है। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है, हम मध्यस्थता करने के लिए हैं। हमारे प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य को बलपूर्वक इस धरती, इस पृथ्वी पर ला सकते हैं। हम लोग देख रहे थे प्रार्थना के ऊपर, जब हम लोग बात कर रहे थे कि जब उसके यीशु मसीह के चेले उसके पास आए और उसको बोले कि हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, मास्टर टीच अस हाउ टू प्रे। यीशु मसीह ने उनको सिखाया प्रार्थना करना। और यीशु मसीह जब उनको सिखा रहे, यीशु मसीह ने उनको प्रभु की प्रार्थना सिखाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज्य जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस
धरती पर भी पूरी हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह उनको सिखा रहा है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रेयर इज टू ब्रिंग द किंगडम ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। जो सबसे प्राथमिक जो उद्देश्य है प्रार्थना का, वो है बलपूर्वक परमेश्वर का राज्य को इस पृथ्वी पर लेकर आना। और इसी के लिए परमेश्वर ने खास तौर पर वो 5 जो सेवकाई दिया था कलीसिया के लिए। हम देखेंगे इफिसियों उसका 4 अध्याय का 11 से 13 वचन। So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining the whole measure of the fullness of Christ. So यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने खुद ये जो 5 सेवकाई है, जो द अपोस्टल जो प्रेरित है, द प्रॉफिट जो भविष्यवक्ता है, द इवेंजलिस्ट जो प्रचार का कार्य करते हैं, द पास्टर्स जो पास्टर या पादरी है, और द टीचर्स जो वचन के शिक्षक है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ये 5 सेवकाई दिया। और यहाँ पे देखते हैं हम कि क्यों दिया। हम अगर देखते हैं तो यहाँ लिखा है वचन 12 और 13 में, टू इक्विप हिज पीपल, अपने देह के, यीशु मसीह के देह को इक्विप करना, उसको तैयार करना, उसको ट्रेन करना। लोगों को तैयार करना क्या के लिए? सेवकाई के लिए, ताकि यीशु का जो देह है वो बनता चला जाए। और हम आगे देखते हैं, लिखा है until we all reach unity in faith, ताकि हम सब एक मन, एक आत्मा हो सके, एक विश्वास में हम लोग बढ़ सके। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उसके बारे में, उसके ज्ञान में हम लोग बढ़ सके, एंड बिकम मैच्योर, ताकि हम परिपक्व हो सके, अटेनिंग टू द होल मेजर ऑफ द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट। वो हम यीशु मसीह के हम स्वरूपता में, उसकी परिपूर्णता में हम बढ़ते चले जाए। इसी के लिए यीशु मसीह ने ये 5 सेवकाई कलीसिया में दिया था। और ये यीशु मसीह की देह के लिए जब लोग जब ये नए नए प्रभु में आते हैं, वो छोटे बच्चे के समान होते हैं, दे आर लाइक बेबीज। और जरूरी है कि उनको ट्रेन किया जाए, उनको सिखाया जाए, उनको इक्विप किया जाए, उनका प्रशिक्षण किया जाए, ताकि वो आगे चल करके सेवकाई का कार्य कर सके। आप हो सकता बोलेंगे, हेलो 1 मिनट, मेरा कॉलिंग सेवकाई नहीं है, माई कॉलिंग इज टू बी समथिंग एल्स। बट परमेश्वर का वचन कहता है दैट एवरीबडी इज कॉल्ड फॉर मिनिस्ट्री। हर कोई को सेवकाई के लिए बुलाया गया है। देयर इज नथिंग कॉल्ड फुल टाइम एंड हाफ टाइम। एवरीबडी इज अ फुल टाइम वर्कर फॉर क्राइस्ट। The day you accepted Jesus in your life, जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, उस दिन से आप फुल टाइम सेवकाई में आ गए। उस दिन से आप फुल टाइम सेवक बन गए। आप हो सकता है कोई भी कार्य कर रहे हो, आप जहां कहीं भी हो, लेकिन आप सेवकाई में हैं। You are in ministry. Everybody is involved in ministry. But we will not understand we are in ministry until and unless we understand the purpose. हम नहीं समझ पाएंगे कि हम सेवकाई में हैं जब तक कि हम उस उद्देश्य को नहीं समझ लेते। कलीसिया हमें अपने मनों को खोलने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमारे जीवन के बारे में, उस उद्देश्य के बारे में। आप एक याजक है, हम एक याजक है। हो सकता है कि आप कोई और पेशा में होंगे, हो सकता है कि आप कोई और कार्य कर रहे होंगे, कोई मजदूरी का कार्य कर रहे होंगे, कोई आईटी स्पेशलिस्ट होंगे, कोई बहुत ऊंचे पद में होंगे, हो सकता है, और आप कोई भी कार्य में क्यों ना हो, लेकिन आप एक याजक है। परमेश्वर का वचन यही हमें कहता है, यू आर अ प्रेइंग प्रीस्ट। आप एक प्रार्थना करने वाले याजक है। सो यू नीड टू एक्सरसाइज द मिनिस्ट्री ऑफ अ प्रीस्ट। आपको जरूरत है कि आप एक याजक की सेवकाई को करें। आप जहां भी है वहां करें।
ताकि लोगों के बीच में परमेश्वर का राज्य बलपूर्वक आए। आपको और मुझको परमेश्वर बुलाता है याजक की सेवकाई करना, जो कि है मध्यस्थता करना। हमें इस बात को समझना है, हम जहां कहीं भी जाते हैं परमेश्वर का खुला हुआ स्वर्ग हमारे लिए है, और इसीलिए जब हम लोगों के बीच में होते हैं लोग प्रभावित होते हैं। क्या आपने कभी सुना है, कितने बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, लोग आकर कहते हैं हमें आपसे बात करना अच्छा लगता है, आपसे एक पॉजिटिव वाइब्स मिलता है, बहुत शांति मिलता है आपकी बातों को सुन करके, हमें अच्छा महसूस होता है, आपके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। ये कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं है, लेकिन ये वो यीशु मसीह का प्रभाव है जो आपके जीवन के द्वारा उनके जीवन में असर कर रहा है। इट इज जीसस, इट इज जीसस। आप और हम उसके याजक हैं, और उसका कार्य हमारे द्वारा उन लोगों के बीच में हो रहा है। बिकॉज व्हेन वी आर द प्रीस्ट एंड वी आर मिनिस्टरिंग एज अ प्रीस्ट, द पीपल आर बीइंग अफेक्टेड। जब हम याजक हैं, याजक की सेवकाई कर रहे हैं, हमारे चारों तरफ जो लोग हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। कलीसिया, हमें इस बात को समझना है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारे बिना कार्य नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि किसी भी कार्य को अंजाम देने के लिए परमेश्वर को आपका और मेरा जरूरत है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ सहभागी हो उस कार्य में। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ पार्टनर करें उसके कार्य में। He is raising an army of intercessors। आज परमेश्वर अपने लिए मध्यस्थता करने वालों की एक सेना को तैयार कर रहा है, और कितना आशीष का बात होगा, कितना हमारे लिए सौभाग्य का बात होगा कि हम वो स्त्री वो पुरुष बने मध्यस्थता करने वाले, हम वो पुरुष वो स्त्री बने उस अंतराल में खड़े होने वाले। परमेश्वर हमारे बिना भी उस कार्य को कर सकता है, लेकिन वो हमें ये मौका देता है, वो हमें ये अवसर देता है, और आइए हम इस अवसर को बहुमूल्य जाने। Let us not live our life without the purpose, but let us live our life with purpose. So let us know what God wants from us so that we can fulfill His purpose in our life. कलीसिया, आइए हम उठे। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। अगर कलीसिया सो रही है, और युद्ध के समय में अगर कलीसिया ने उस तुरही को नहीं बजाया, if during the time of war, if the church has not blown the trumpet, then the church is accountable for the slack and for the downfall of her people. तब वो कलीसिया जिम्मेवार है अपने कलीसिया के लोगों के पतन के लिए और उनका ये आलस्य के लिए। But if the church is blowing the trumpet and it is going on blowing the trumpet, पर अगर कलीसिया तुरही पर तुरही बजा रही है, अपने लोगों को सावधान कर रही है, और उसके बावजूद भी अगर कलीसिया के लोग सतर्क नहीं हो रहे हैं, then the church is not responsible. परमेश्वर के सामने परमेश्वर कलीसिया को जवाबदेही नहीं ठहराएगा, but you will be responsible for your slack and for your downfall. You will be without an excuse because the trumpet was sounded. तब आप बिना कोई बहाना का, बिना कोई एक्सक्यूज का होंगे, क्योंकि तुरही तो बजाया जा रहा है, आपको जगाया जा रहा है। हम जागते रहे, हम देखते रहे, मौसम को देखते रहे। Let us fulfill the ministry of a priest. आइए हम एक याजक की सेवकाई को पूरा कर, by interceding and standing in the gap, मध्यस्थता करते हुए और उस अंतराल में खड़े होकर के, for our people and the nation, हमारे लोगों के लिए और हमारे देश के लिए। सो आइए कलीसिया, हम आपको एनकरेज करना चाहते हैं, हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि अपने चारों तरफ के मौसम को देखते रहिए
और जो सेवकाई जो परमेश्वर चाहता है आप करें, एक याजक का कार्य, एक याजक का जो प्राथमिक कर्तव्य है उसको पूरा करते रहे। आइए आप और हम मिल करके मध्यस्थता करने वाले लोग बने, हम परमेश्वर को भाते हुए लोग बने। परमेश्वर हमें आशीष दे और परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करे। हम चाहे जहां भी क्यों ना हो, जो भी पोजीशन में क्यों ना हो, आइए हम वो लोग बने जिसके द्वारा परमेश्वर का राज्य बलपूर्वक इस दुनिया पे आ सके। परमेश्वर आपको और मुझको, हमको बुला रहा है फॉर सच अ टाइम एज दिस। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आइए कलीसिया हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारा विश्वास है कि आप हमसे बातें कर रहे हैं प्रभु। आप चाहते हैं प्रभु कि हम आपकी कलीसिया तैयार पाई जाए प्रभु। आप चाहते हैं प्रभु कि आपका जो उद्देश्य है उसको हम समझ जाए। यीशु मसीह का देह बनकर हम एक साथ प्रभु खड़े हो जाए और आपका उद्देश्य को प्रभु इस समय के लिए हम पूरा करें। हम हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप हमारे कमजोरियों को जानते हैं प्रभु, आप जानते हैं हमारे बारे में सब कुछ प्रभु। हमारे जीवन को ले लीजिए और आप जैसा चाहते हैं वैसा बना दीजिए। हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपका राज्य हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में हाँ और आमीन के साथ पूरी हो प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया कलीसिया। सो परमेश्वर का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सच में परमेश्वर इन दिनों में अपना कलीसिया में उसके लोगों को तैयार कर रहा है, जो मध्यस्थ प्रार्थना में आने वाला सेनाओं को तैयार कर रहा है। सो हम इसमें शामिल होना है। आपको हमको वो बीच में आकर, वो गैप में खड़ा होकर वो मध्यस्थ प्रार्थना में आने के लिए हमें बुला रहा है। सो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हम ये बात फिर से कहना चाहता है, आए हम वो बच्चे ना रहे, लेकिन हम वो परिपक्वता का जीवन में आए। हम अपना विश्वास में बढ़े और हम लोगों के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन बीच में आकर जो परमेश्वर जो पुकार रहा है, जो परमेश्वर हमें बुला रहा है, वो मध्यस्थ प्रार्थना में आने के लिए हम उसको जवाब देंगे। हाँ परमेश्वर, मैं भी हूँ, मैं भी वो मध्यस्थ प्रार्थना का योद्धा, एक मजबूत, एक दृढ़ता में खड़ा होकर वो लड़ने वाले एक सेनाओं में होंगे, आपके साथ में होंगे। मुझे भी आज आप ले ले, आए हम उसमें शामिल होकर सेवकाई करें। परमेश्वर हम सबको सेवकाई के लिए बुलाया है। कोई भी एक्सक्यूज नहीं है यहाँ में। आप सबको, आपने प्रभु यीशु मसीह को जवाब देकर अपना जीवन में स्वीकार लिया है, तो आप और हम उसका सेवकाई में हैं। उसका सेवकाई क्या है? परमेश्वर का राज्य को बढ़ाना, उसका सुसमाचार सुनाना, उसके लोगों के लिए प्रार्थना करना। सो इन दिनों में सच में परमेश्वर ऐसे योद्धा, ऐसे सेनाओं को तैयार कर रहा है, ताकि लोग बीच में आ जाए और लोगों के लिए विनती प्रार्थना करे। परमेश्वर सबको आशीष दे। सो अब समय है हम परमेश्वर को अपना दान दसवान के द्वारा आराधना करने का। आए हम कलीसिया अपना दान दसवान को हम निकालेंगे और हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आए प्रार्थना करेंगे। पिता, धन्यवाद करते हैं तेरे उपस्थिति के लिए। तू हमें बात किया और सेवा की हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तूने हमें प्रभु वो बहुतायत से आशीष दिया हमारे जीवन में, वो क्षमता दिया कि हम कमा सके, काम कर सके। प्रभु धन्यवाद वो आशीषों के लिए। प्रभु हम अब आनंदित के साथ, खुले दिल से प्रभु आपके लिए हम ये दान दसवान लाते हैं। प्रभु तू प्रभु स्वीकार ले और अपना राज्य बढ़ाने में इस्तेमाल करे। प्रभु धन्यवाद करते हैं सारे आशीषों के लिए, यीशु के नाम से, आमेन। आमेन चर्च। सो कलीसिया, अगर आप ऑनलाइन के द्वारा देना चाहता है तो आपका स्क्रीन में हमारा कलीसिया का डिटेल्स आ रहा होगा। वहाँ में चाहे गूगल पे के द्वारा हो, किसी भी द्वारा, वो अकाउंट नंबर से आप
डायरेक्ट पे कर सकता है। अगर यदि आप ने कलेक्ट करके रखा है तो आप अलग करके रखिए। उसके बाद भाई एलेक्स को आप कॉल करके बता दीजिए ताकि हम लोग हर संडे का रिकॉर्ड रख सके। चर्च, हम इस बात भी बताना चाहता है कि हमारा कलीसिया में डिसाइपलिंग हो रहा है। भले हम साथ में मिल नहीं पा रहे, लेकिन फ़ोन के द्वारा हम लोग कॉल करके डिसाइपलिंग शुरू हो गया है। लगभग हम लोग काफ़ी लोगों के साथ डिसाइपलिंग कर रहा है। तो अगर आपको भी वो डिसाइपलिंग में शामिल होना चाहता है, सप्ताह में आपको बस 1 घंटा निकालना है कोई भी दिन, तो आपको डिसाइपल किया जाएगा। जो नंबर आपका स्क्रीन में जो आए हुए उसमें आप संपर्क कर सकता है ताकि आपको हम लोग बात कर सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम लोग इस तरह से फिर से नेक्स्ट संडे मिलेंगे, और तब तक के लिए परमेश्वर आप सबके ऊपर उसका शांति, प्रेम और उसका उपस्थिति हमेशा आपका परिवार के ऊपर, आपके ऊपर बने रहे। सबको जय मसीह की।